और सीधे लेके चलते बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. And I see all of you very excited today. Before I give the mic to the chairman, I would like to announce the team picked up by the selectors for the Bangladesh tour. For the ODIs, we have Mahendra Singh Dhoni as the captain of Indian cricket team, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Shikhar Dhawan, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Radu, R. Ashwin, R. Jadeja, Akshar Patel, Bhuvnesh Kumar, Umesh Yadav, Mohit Sharma, Stuart Binning and Dhaval Kulkarni. Akshar Patel, Bhuvnesh Kumar, Umesh Yadav, Mohit Sharma, Stuart Binning and Dhaval Kulkarni. Do I need to repeat this? Yes, please. Shall I? MS Dhoni captain, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Radu, R. Ashwin, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, Bhuvnesh Kumar, Umesh Yadav, Mohit Sharma, Stuart Binning and Dhaval Kulkarni. For the one test match, I request Professor Shetty to come and join us. Come. Virat Kohli captain, Murli Vijay, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Rohit Sharma, Riddhiman Saha, R. Ashwin, Harbhajan Singh, Karan Sharma, Bhuvnesh Kumar, Umesh Yadav, Varun Aaron and Ishant Sharma. खबर तो मिली गई आपको. Shall I repeat it again or is that fine? So quickly I do that. Virat Kohli captain, Murli Vijay, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Rohit Sharma, Riddhiman Saha, R. Ashwin, Harbhajan Singh, Karan Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Umesh Yadav, Varun Aaron and Ishant Sharma. I hope you have taken the note and we will circulate the list to all of you. In the meantime, I'll hand over the mic to the chairman of selection committee. If you have any questions, any queries, you feel free to ask that. And I'll request Devendra Prabhu Desai, he can come here and moderate the session. Good afternoon, friends. Who would like to start? Yeah, Anurag. सर ऐसी खबरें थी कि हमें को शायद एक फेयरवेल टेस्ट दिया
जा रहा है, इस वजह से उनको ये मौका मिला, क्या सच है? आपने शुरू में ही कहा खबरें थी, तो खबरों को खबरें रहने दो, ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, कैन यू कम अगेन प्लीज? रिहर्सल के लिए नहीं, कोई प्लेयर ने ना बीसीसीआई को या मुझे फोन किया या कहा. सिर्फ मोहम्मद शमी ही इज अनफिट. ही इज उनको पिक नहीं किया गया मोहम्मद शमी. at that time they can consider Yeah. that, but as of now no player has. Correct. Everybody reported fit except Mohammad Shami, who is recovering, and he will be available after 4 weeks. Otherwise, everybody was available for the selection. अनुराग जी, आपसे एक सवाल है. जी ये परंपरा काफ़ी दिनों से बंद हो गई थी, सेलेक्शन का तो जो पूछना चाहूँगा, ये आपने रिवाइव किया, इसके लिए आपको साधुवाद. जानना चाहेंगे कि ये आगे परंपरा चलती रहेगी, और जो टूर्स पे जो हम लोग वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हम लोगों को एज ए टेररिस्ट समझा जाता था, बहुत दूर रखा जाता था मीडिया को, तो ये क्या चलेगा और एक स्थायी प्रोफेशनल मीडिया मैनेजर आप रखेंगे? मुझे लगता है बड़े लंबे समय से मांग थी कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो. आपकी वो मांग को पूरा किया गया है. कदम हमने अपनी ओर से आगे बढ़ाया है. आप सहयोग कीजिए, हम और आगे बढ़ेंगे. We are in the process of finalizing the Cricket Advisory Committee and also shortlisting the name of the coaches who are available for the Indian cricket team. Once that process is completed, we will be in position to take a final call to select the coach for the Indian cricket team. We are looking at all the positions, whether it is the main coach or the support staff for the Indian cricket team. मेरा संदीप जी से सवाल है सर, हरभजन सिंह बहुत साल के बाद इंडियन टीम में वापसी कर रहे हैं, क्या आईपीएल की परफॉर्मेंस कंसीडर की गई या रणजी ट्रॉफी में जहां पे उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी? I think Harbhajan Singh was discussed in our earlier meetings also. इससे पहले भी जितनी सारी मीटिंग्स हुई, हरभजन सिंह के नाम का जिक्र हुआ था. Particularly regarding this Bangladesh tour, the selection committee, I am speaking on behalf of selection committee, उनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि हरभजन को लिया गया है, खास करके जो बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रेंथ है और जितने लेफ्ट हैंडर्स उनके साइड में है, उसको नज़र रखते हुए सिलेक्शन कमिटी फेल्ट दैट a second off spinner is needed, and we had a selection committee also had a long discussion with the captain Mr. Virat Kohli on this issue, and then the decision was taken. मेरा सवाल अनुराग जी से, दो सवाल. अनुराग जी, आप सहयोग की बात कर रहे हैं, सहयोग तो हम लोग हमेशा देने के लिए तैयार हैं. नंबर दूसरी चीज़, किसी खबर को पुष्टि करने के लिए ज़रूरी है आपकी तरफ से क्लियरेंस. कोई क्लियरेंस मिलता नहीं है. अगर किसी से परफेक्टली पूछो तो सूत्र के हवाले से होता है. मेरा दो सवाल है. इंडिया पाकिस्तान सीरीज पे क्या प्लेन है, नंबर 1. नंबर दूसरा मेरा सवाल ये है कि विराट कोहली और अनुष्का के बारे में क्या कोई लेटर या कुछ, क्योंकि अलग अलग खबरें आती हैं, बोलते हैं कि लेटर दिया गया है, वार्निंग दिया गया है, आपसे क्लियरेंस करना है. सर, इसी से जुड़ा सवाल है, क्या बीसीसीआई भी ये जो कोड का उल्लंघन किया है इसे मामूली समझती है? क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ने इसको बहुत मामूली समझा है, और उन्होंने कल ये वाली बात की कि हमारी तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट है. क्या आपकी तरफ से स्टेटमेंट इस तरह का नोटिस जाए? क्योंकि ये फोटो भी बीसीसीआई नहीं दिया, अनुष्का की और इसकी जो फोटो भी दी है वो बीसीसीआई नहीं दी आईपीएल के. देखिए, आज भी जहां एक और हमने 2 नई टीम्स चुनी हैं, बांग्लादेश टूर पर हम जा रहे हैं. बांग्लादेश की टीम ने बहुत अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है. वहीं दूसरी ओर आपने पाकिस्तान की बात कही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पहले दिल्ली में मुझसे मिले, फिर डालमिया जी से मिले, और अब लास्ट में फिर एक बार मुझसे मिलकर वापस गए. अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर टूर प्रोग्राम,
We were supposed to play against Pakistan in the month of December. That is why they have requested us to play the series against Pakistan. This is still at the initial stage. We are still at the discussion stage. There is no final decision taken yet. There are many issues which need to be resolved among two boards, and we are talking to each other. The moment we'll decide, we'll let you know. अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हो रही है. पाकिस्तान दौरे के बारे में जब बात होगी तब उस पर निर्णय किया जाएगा. दूसरा, जहां तक आपने अनुष्का और विराट कोहली की बात कही है, आईपीएल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एंटी करप्शन यूनिट नोटिस देता है, वो बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. उसके अंतर्गत जो हमें करना था हमने वो सब किया है. उसमें खिलाड़ी गेम से कोई बड़ा नहीं है, इसलिए जो उसके नियम कहते हैं उसके अनुसार पहले भी कार्रवाई हुई, अब भी कर रहे हैं. I think if you look at the last 2 months, you have seen some change in the BCCI. It is just the beginning. We need your support. You helped us to promote this game and made it very popular among the masses. And we understand the role of media as far as the game of cricket is concerned. And we can work together to make it more popular. पाटील सर, माझा महेश काकडे सांगलीमध्ये सिलेक्शन होतं त्यामुळे सर्वजणचा समावेश करण्यात आलेला आहे. युवराज सिंगबद्दल काही विचार करण्यात आलेला होता का? जय महाराष्ट्र. नहीं, युवराज सिंग के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं. युवराजच्या बाबतीत काही डिस्कशन झालं नाही. It will be difficult for me to say who all were discussed. Those who we felt, selection committee and the captain felt, were discussed. संजीव Yeah, of course, we all understand कि हमारी टीम काफ़ी समय से लगातार खेल रही है. And it's not only our team, the other teams are also playing continuous cricket. But if you look at the policy which selection committee has followed, we have been giving rests to a couple of players, and we have considered the request from the players side also. But particularly regarding this tour, there was no request from the players, so we went ahead picking the best possible combination. सोम तो क्या गंभीर का पैमाना जो थोड़ा नीचे रह गया, और दूसरा सवाल कि और भी डोमेस्टिक प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छा खेला है आईपीएल में. कहीं ना कहीं लगता है कि इस टूर के लिए कुछ डोमेस्टिक प्लेयर को आजमाना चाहिए था. देखिए, जब सिलेक्शन की बात होती है, कॉम्बिनेशन की बात होती है, जब 15 प्लेयर्स चुने जाते हैं, स्लॉट कौन से स्लॉट पे किसको आना है, कौन से स्लॉट पे कौन सा खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में है, वो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए सिलेक्शन किया जाता है. अभी मैंने जैसे पहले कहा कि बांग्लादेश की जो बैटिंग ऑर्डर है, उनके पास जो 6 लेफ्ट हैंडर्स है, उनको नज़र रखते हुए हमने जो डिस्कस किया कप्तान के साथ कि ज़रूरत हमें लगी कि यहाँ पे 2 ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है. ऐसा नहीं मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ हरभजन का ही हमने नाम लिया है. उसके बारे में हमने दूसरे ऑफ स्पिनर जो है हमारे पास यंगस्टर्स है, उनके बारे में भी हमने विचार किया, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ. अल्टीमेटली selection committee and the captain felt that this is the right choice for this particular tour. सेम टॉपिक अभी जो संदीप जी ने बात की है हरभजन के बारे में, क्या वनडे में वही लॉजिक नहीं इस्तेमाल हुआ कि हरभजन लेफ्ट हैंडर्स को गेंदबाजी करेंगे? वेल, वनडे अभी हम लौटे हैं वर्ल्ड कप खेलने के बाद, एंड आई थिंक इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है वहाँ पे. सो चॉपिंग एंड चेंजिंग और डिस्टर्बिंग द कॉम्बिनेशन इज नॉट what selectors felt that this is the right time. जब ज़रूरत पड़ती है, अगर फिटनेस का इशू होगा आगे, तो हम ज़रूर उस बारे में भी विचार करेंगे.
So was he considered as a spinner for the role? Sorry, come again, please. Ravindra Jadeja had been fantastic in home tests, and the conditions in Bangladesh are going to be similar. So was he at least considered for the spinners too? Of course, we did discuss not only Ravindra Jadeja, the other spinners available for the selections also. What is the pool of spinners that we are looking at? Because our fast bowling stocks are pretty much stable. We know we have 5 or 6 bowlers. But in terms of spinners, who are we looking at? See, we have selected the best possible spinners for this particular tour. जब भी हम सिलेक्शन के लिए बैठते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ जा रही है हमारी टीम, किसके सामने खेल रही है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उसी हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने सारे स्पिनर्स हैं. Let us focus on this particular Bangladesh tour, and for this tour, the selection committee and the captain felt that this is the best combination we can go in with. Is Bhaji a slightly backward step to the team? जब हम किसी का चुनाव करते हैं, किसको चुनते हैं, हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि क्यों चुना गया. जब हम नहीं चुनते तो दूसरा बात होती है. तो सी ऑल वी रिप्रेजेंट, सिलेक्शन कमिटी रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी क्रिकेटर ऑफ इंडिया, and we don't have emotional angles, we don't have emotional attachments. We look for the performances and the fitness and the combination, whether a particular player, a bowler, batsman fits in that combination. And last 2 years we have been trying. दोनों टीमों का ऐलान हो गया. आपने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी संदीप पाटिल के मुंह से भी सुन लिया, बोर्ड सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर के मुंह से भी सुन लिया. बड़ा बदलाव भारतीय क्रिकेट में यह है कि हरभजन सिंह के लिए एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे खुल गए हैं. अब इसे बोर्ड में बदलाव कहें या जो भी कहें, टीम तकरीबन वैसी है जैसी भारत की होनी चाहिए थी. वनडे टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में कोई बदलाव नहीं है. सिर्फ एक बदलाव है, मोहम्मद शमी जो कि चोटिल है वो बाहर, और उनकी जगह धवल कुलकर्णी को लिया गया. तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि खिलाड़ी आराम मांग रहे हैं, या तो उन्होंने आराम मांगा नहीं या फिर चयनकर्ताओं ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजने का ऐलान किया. लेकिन टेस्ट टीम में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव, हरभजन सिंह की वापसी हुई है. हरभजन सिंह जिन्हें तकरीबन 2-2.5 साल से इग्नोर किया गया था, यहां तक कि रणजी ट्रॉफी के सिर्फ 3 मैच खेले थे इस साल, वो रणजी ट्रॉफी में भी बाहर बैठे थे. आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट थे वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सीजन आगे गया, आईपीएल में उन्होंने शानदार वापसी की, और नतीजा यह है कि उनकी वापसी टेस्ट टीम में हुई है. आपको याद होगा कल आज तक पर शाम 7:30 बजे सौरव गांगुली बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हरभजन सिंह की वापसी होनी चाहिए टेस्ट मैचों में, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ. 413 टेस्ट विकेटें हैं, तजुर्बा बहुत ज्यादा है चेतन जी, और सिर्फ तजुर्बे के कारण क्या वापसी हुई है, या बोर्ड में बदलाव के कारण वापसी हुई है, या फिर हरभजन सिंह ने खुद अपने ये दरवाजे खोले हैं? तीनों में से क्या चीज हुई है? नहीं, देखिए 3 चीज़ तो ये है, मैं इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहता हूँ, और वो है अश्विन का बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है विदेशों में नहीं रहा है. तो ये भी एक बड़ा कारण है. और क्योंकि जैसा अभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कह रहे थे कि उनके पास लेफ्ट हैंडर, बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत अधिक हैं, तो इसीलिए उनको एक एक्सपीरियंस ऑफ स्पिन बॉलर भी चाहिए. एक स्पिनर ऐसा चाहिए था जो, क्योंकि आपको टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेने हैं, और 20 विकेट लेने के लिए आपके पास बॉलर होने चाहिए, और यदि वहाँ पर ग्रीन टॉप विकेट नहीं मिलती हैं, स्पिनिंग विकेट मिलती हैं, फ्लैट विकेट मिलते हैं, फिर आपको स्पिनर्स की आवश्यकता होती है. तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात ये भी है कि हरभजन सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बिल्कुल कहीं से कहीं इंटरेस्ट कम नहीं किया. जैसे अधिकतर प्लेयर्स होते हैं कि एक साल अगर नहीं होता है टीम में तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं. यहाँ पे हरभजन सिंह ने किसी में लगातार खेलते चले जा रहे हैं, हर फॉर्म की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, और खासकर अब जो 2020 हुआ उसमें बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की. हालांकि लोग कहते हैं कि आईपीएल ना तो दरवाजे खोलने चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, ना ही दरवाजे बंद होने चाहिए, लेकिन आईपीएल में परफॉर्मेंस कहें या फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच फिटनेस कहें, हरभजन सिंह वापस आए हैं. यह बड़ी खबर है. वनडे की टीम एक बार फिर आपको बता दें कि तकरीबन वही है जो वर्ल्ड कप में खेलने गई थी. एक बदलाव है, मोहम्मद शामी जो कि चोटिल है वो टीम से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह धवल कुलकर्णी आ गए. लेकिन टेस्ट टीम में एक बड़ा बदलाव है, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है, 2 ऑफ स्पिनर्स हैं, अश्विन है और हरभजन सिंह भी हैं.